آئیے عزیزوں میرے ساتھ مل کر دعا کیجئے. بولیے اے قدوس خداون، میں یسوع مسیح کے نام میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، اور خداون مانتا ہوں کہ تو مجھے لے کر آیا ہے تاکہ آج میرے جیون کو چینج کرے. آج میں یسوع مسیح کے نام میں پاک روح کی آواز کو بولیے سننے کو تیار ہو. وہ کلام مجھے چھڑائے، آزاد کرے، مجھے اثردار کرے، پھلدار کرے. ہر ایک بھانچ پن کو آج کے کلام کی قدرت سے بولیے پاک روح کینسل کرے، اور یسوع مسیح کے نام میں آج میں سیب نہ رہوں. یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں چرچ مل کر بولے آمین. ہالےلویا. سب مل کر بولو ہالےلویا. آئیے کھڑے کھڑے ہم بائبل مقدس میں سے ایک ورس کو تلاوت کریں گے. عبرانیوں کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں 18ویں اور اس کی 19ویں، ان 3 آیات مقدسہ کو پڑھیں گے. میرے ساتھ دھیان کریے گا. عبرانیوں 3 باب اور اس کی 17ویں 18ویں اور پھر 19ویں 3 ورسز کو. وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ یہ سوال ہے. اور آگے جواب ہے، کیا ان سے نہیں جنہوں نے نمبر 1 کیا کیا؟ بولیے گناہ کیا، اور ان کی لاشیں بائبل کہتی ہے بیابان میں پڑی رہی. 18ویں ورس کہتی ہے، اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے نافرمانی کی. یہ بھی سوال ہے. آگے 19 آیت کہتی ہے، غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت رکھے. اونچی آواز میں مل کر بولو آمین. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. آج کا ہمارا مضمون ہے دا ریسٹ آف گاڈ، اور یہ بڑا خاص مضمون ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ اسے بڑی توجہ سے سنیے گا. ایک بھید ہے. ہم نے کئی بار خدا کے آرام کے بارے میں ذکر سنا ہوگا، لیکن میں نے اس ویک میں اس چیز کو سمجھا ہے روح القدس کی معرفت سے کہ اصل میں خدا کا آرام ہے کیا. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ اسرائیل قوم کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی، اور وجہ صرف یہ تھی کہ خدا ان سے ناراض رہا. آپ کو بائبل مقدس میں پڑھنے سے اس بات کی وجہ پتہ چلتی کہ خدا ان سے کیوں ناراض رہا. ان کے یہاں پر گناہوں کی لسٹ بتائی گئی ہے، جس کے کر کے بائبل کہتی کہ خدا نے اپنے حیات کی قسم کھا لی تھی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے. اب یہاں ہم یہ پڑھتے ہیں عزیزو، نمبر 1 بائبل کہتی کہ ان لوگوں نے گناہ کیا، اور گناہ کی جو کمیٹی ان لوگوں نے ڈالی تھی وہ نکلی، اور ایسے نکلی کہ ان کی لاشیں بیابان میں ڈھیر ہو گئیں، جبکہ خدا کا پلان کچھ اور تھا کہ وہ میرے آرام میں داخل ہوں، لیکن لکھا ہے وہ آرام میں داخل نہ ہو پائے. ہم 19 ورس میں یہ پڑھتے ہیں، بلکہ 18ویں میں یہ پڑھتے ہیں، ان میں نمبر 1 نافرمانی پائی گئی. 19 میں لکھا ہے ان میں بے ایمانی پائی گئی. اور ہم 17ویں آیت میں پڑھتے کہ وہ مختلف طرح کے گناہوں میں ملوث پائے گئے. عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا پلان نہیں تھا، کیونکہ خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے کہا تھا میں تیری نسل کو مصر میں غلامی میں بھیجوں گا، لیکن وہ 400 سال کی غلامی کے بعد وہاں سے چھوٹ کر نکلیں گے، اور میں ان کو کنانیوں کا دیش دوں گا. وہ علاقہ ان کا ہوگا، وہ ایک سرزمین جو خوشحالی کا نشان ہے، وہ ان کی منزل ہوگی. لیکن افسوس تو یہ ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی. اب عزیزو، ان آیات مقدسہ میں پاک روح یہ بتاتا ہے کہ آج بھی اگر یہ گناہ انسان کی زندگی کے اندر پائے جائیں گے تو جو ناراضگی اس کی اسرائیل کے ساتھ رہی وہ آج بھی کرسچن لوگوں کے ساتھ رہے گی. وہ گناہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 بولو نافرمانی، نمبر 2 بولو بے ایمانی، اور تمام طرح کے گناہ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا آج بھی کلیسیاؤں کے اندر یا کسی کی شخصی زندگی کے اندر اگرچہ پلان رکھتا ہے اسے ہیون میں لے کے جانے کا، لیکن جب یہ گناہ اس کی زندگی میں پائے جائیں گے وہ اپنی منزل کو گوا دے گا، وہ کھو دے گا.
इसलिए मैं ये बता रहा हूं, इस बाइबल के इस लिस्ट में जो चीजें यहां पर बताई गई हैं कि उनमें जो गुनाह पाए गए थे वो मुसलसल करने वाले गुनाह थे, कि बारहा उनको खुदा ने आगाह किया, बारहा खुदा ने उनको, बाइबल कहती कि उनको इसको इसको बिठाओ अपने पास, उसको बिठाओ अपने पास बिठाओ उसको। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बच्चों को समझा के लाया करें, खास तौर पर मैसेज के बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि फ्लो रुक जाता है, और स्पेशली इस बच्ची को। ओके, हम बाइबल में ये पढ़ रहे हैं, मैंने कहा वो किन लोगों से 40 वर्ष तक बाइबल कहती है नाराज रहा। बोलिए इजराइल से, बोलिए इजराइल से। ये पुराने अहदनामे की कलीसिया है, ये पुराने अहदनामे का चर्च है, जिसके ऊपर एक मास्टर प्लान था खुदा का कि मैं इन्हें अपने आराम में दाखिल करूंगा, लेकिन वो जा ही नहीं पाए। हम यहां अजीजों ये पढ़ते गए, उन लोगों में जो गुनाह पाए गए थे, उन गुनाहों की वजह से खुदा उनसे नाराज हुआ। बावजूद इसके के उनको बार बार मौका देता रहा, बावजूद इसके के बार बार उनके लिए आसमान से मैसेज अपने बंदा मूसा को जारी करता रहा, मेरी कौम को ये बताना, मेरी कौम को ये बताना। आप ये पढ़ोगे उस जमाने के अंदर कभी भी किसी कौम के लिए इल्हाम नहीं उतरा, कभी भी खुदा किसी कौम के लिए नहीं बोला, लेकिन अगर इजराइल के लिए बोला था और उनको लिखे हुए कानून दिए, हमें यह पढ़ने को मिलता है कि ये कानून उनको मानना फर्ज था, इनका ऑनर करना उनका फर्ज था, इनका लिहाज करना उनका फर्ज था। इसलिए हम अजीजों यहां ये पढ़ते गए कि गुनाह करना प्रॉब्लम तो है, लेकिन गुनाह करते रहना एक बड़ी प्रॉब्लम है। अजीजों बेईमानी में चलना प्रॉब्लम तो है, लेकिन बेईमानी में मुसलसल वहां रहना एक बड़ी प्रॉब्लम है। और गुनाह करना, बेईमानी में करना, नाफरमानी में रहना, मैंने कहा अगरचे प्रॉब्लम है, लेकिन अफसोस तो यह है कि अगर वो इंसान उसी हालत में पड़ा ही रहे तो उसके लिए एक बुरा, मैं बता रहा हूं कि अंजाम उसका वेट कर रहा है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि कलाम खुदा के अंदर हमें ये सीखने को मिलता है कि इजराइल कौम, इब्राहिम को जब खुदा ने कहा था कि ये जाएंगे मुल्क मिस्र में गुलामी में, तो ये सोचो वहां पर उनके 430 साल हो गए, और 430 साल जब हुए, बाइबल कहती है कि वहां उन पर जुल्म होने लगा, वो रोए, वो चलाए और दुआ करने लगे। और जब दुआ करने लगे तो खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब मूसा की शक्ल में दिया। एक वर्ष को पढ़िएगा, खरूज और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं वर्ष को देखिए क्या लिखा है। खरूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं वर्ष में लिखा है, जाकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनको कह कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मैं तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे खूब देखा है। और आगे 17वीं वर्ष में लिखा है, और मैंने कहा कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकाल कर केनान और हत्तियों और अमूरियों और फिरजियों और हिवियों और यबूसियों के मुल्क में ले चलूंगा, जहां बोलिए दूध और शहद बहता है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। ये खुदा का आराम है, जहां पर दूध और शहद बहता है। पुराने अहदनामा के अंदर जब जब आप खुदा के आराम का जिक्र पढ़ते हो तो याद रखना, पुराने अहदनामा के अंदर खुदा का आराम मुल्क केनान की शक्ल में है, और ये जिस्मानी और ये जमीनी बरकत थी जो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए थी। चर्च का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, चर्च का आराम कुछ और है। अजीजों यहां पर मैं बता रहा हूं कि खुदावन ने कहा कि जाकर इजराइलियों को बता कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा ने तुम्हें भी देखा और तुम्हारे दुख को भी देखा, और मुझे दिखाई देकर कहा कि जाकर इनको कह मैं इनको छुड़ा कर ले जाऊंगा। बोलिए कहां? अपने आराम में। बोलिए कहां पर? अपने आराम में, क्योंकि केनान खुदा का आराम है। जब आप पुराने अहदनामा में याद रखो लफ्ज केनान को पढ़ते हो तो ये इजराइल की मंजिल थी। ये क्या है? बोलिए इजराइल की मंजिल थी।
अब मुल्क केनान को बाइबल में 4 नाम दिए गए हैं। कई बार जब एक चीज के कई नाम पढ़ते हैं तो बंदा वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि ये शायद किसी और की बात है, वो किसी और की बात है, पर ऐसा नहीं है। मुल्क केनान को हम ये पढ़ते कि नंबर 1 उसे वादा का मुल्क कहा गया है। दूसरी चीज उसे इजराइल की मिरास कहा गया है। और तीसरी चीज उसे खुदा का आराम कहा गया है। और चौथी चीज उसे मुल्क केनान कहा गया है। ये 4 नाम पुराने एदनामा में इजराइल की मंजिल को नाम दिए गए। मुल्क केनान, इजराइल की मिरास, खुदा का आराम, और मैं ये बता रहा हूं कि वादा का मुल्क। ये एक ही इलाके के 4 नाम बाइबल के अंदर हमें बताए गए हैं। लेकिन अजीजो, हम जहां ये पढ़ते हैं कि वो खुदा की मिरास है और वो खुदा इजराइल को देना चाहता है, खुदा का प्लान इजराइल के लिए कुछ और था, लेकिन वो अपने कामों के करके, अपनी सोचों, अपने किरदार, अपनी रवैयों के करके उस प्लान को खो बैठे। अजीजो, यहां पर ये पढ़िएगा गिनती की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 34 वर्ष को देखिए क्या लिखा है। उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे 1 वर्ष, यानी वहां लिखा है, यानी 40 वर्ष तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने का, क्या लिखा है, मुखालिफ हो जाने को समझोगे। हमने पढ़ा है गिनती की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 34 वर्ष में। अजीजो, जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था, वहां से लेके मुल्क केनान तक का सफर टोटल 40 दिन का था। 40 दिन के अंदर इनको वहां वादा के मुल्क में दाखिल हो जाना चाहिए था। यह खुदा का प्लान था। लेकिन हम ये पढ़ते गए वो नाफरमान रहे, बाइबल कहती वो बेईमान रहे, और बाइबल ये भी बताती वो तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस रहे। और खुदा इन बातों के करके अब उनको बता रहा है कि तुम्हारे कामों का फल तुम्हें मिलेगा। अब एक दिन पीछे तुम्हें 1 साल सफर करना पड़ेगा। 1 दिन का सफर तुम्हें 1 साल में तय करना पड़ेगा। ये उनके कामों का रिजल्ट था कि तुम्हारा गुनाह तुम्हें स्लो कर देगा, तुम्हारी रविश तुम्हारे सफर को तुमसे दूर कर देगी। तुम स्ट्रगल में रहोगे, डिप्रेशन में चलोगे, पीड़ा में और दुख उठा कर चलोगे। ये बाइबल कहती खुदा ने कहा तुम्हारे गुनाहों का फल तुम्हें मिलेगा। 1 दिन की पीछे तुम्हें 1 साल तक सफर करना पड़ेगा। अब इसका मतलब है 40 दिन का सफर उनको कितने 40 सालों में तय करना पड़ेगा। अजीजों, मैं ये बता रहा हूं, हम बाइबल में यहां ये पढ़ रहे हैं कि मिस्र से वो निकल तो आए मूसा की क़ियादत में, लेकिन अभी तक वो मिस्री तालीम उनसे नहीं निकली थी। अभी तक वो बेईमानी, कम एतकादी और शक वो उनकी जिंदगी में रहा। अब मुझे बताओ, इससे पहले क्या कोई जान पाया कि फरिश्ते क्या खाते हैं? अगर इजराइलियों को मन्ना ना दिया जाता तो क्या ये भेद ना रहता? बाइबल कहती है इजराइलियों को खुदा ने आसमान से फरिश्तों की खुदा ने खुराक जारी करके उनकी आसूदगी को कायम रखा। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं इससे पहले किसी कौम के लिए समुद्र को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया गया, लेकिन ये मेरिकल इतना बड़ा इजराइल के लिए किया गया। कभी चट्टानों से पानी नहीं निकला। आप सोचोगे कभी भी समुद्र के अंदर से बटेरे खुदा लेकर नहीं किसी कौम के लिए आया, ये जस्ट इसी कौम के लिए था। लेकिन सोचो, इतने बड़े काम देखने के बावजूद अगर नहीं बदला तो बाइबल कहती उनका बेईमानी में रहना नहीं बदला, बाइबल कहती नाफरमानी में जीना नहीं बदला, और तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस रहना नहीं बदला। आप ये सोचो, क्या खुदा उनको माहौल नहीं दे रहा? क्या खुदा कलाम नहीं कर रहा? क्या खुदा मिरेकल्स नहीं कर रहा? क्या खुदा उनके लिए डिलीवरेंस के बड़े बड़े काम नहीं कर रहा? जो वो कर सकता था वो कर रहा था। लेकिन एक चीज है, वो अपनी जिम्मेदारियों को आज भी पूरे तरीके से निभाता है। अगर वो नहीं निभाता तो इंसान अपनी जिम्मेदारियों को उसके कामों के लिए नहीं निभाता। इसलिए अजीजों, मैंने कई बार चर्च को कहा, आपको कहा
کہ خدا ہماری ذمہ داریوں میں کبھی بھی مداخلت نہیں کرتا. جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو ہی کرنا ہے, جو مجھے کرنا ہے, جو ہم سب کو کرنا ہے وہ ہم ہی کو کرنا ہے. یہ کام وہ نہیں کرے گا. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں, اس حساب سے ان حوالہ جات کو پڑھنے سے ہم وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں اسرائیلی اپنے ارام میں داخل نہیں ہو پائے. بولیے اپنی نافرمانی کے کر کے, بولیے اپنی بے ایمانی کے کر کے, بولیے اپنے گناہوں کے کر کے, ان وجوہات کے کر کے. بائبل کہتی ہے ان لوگوں نے اپنا ریسٹ گوا دیا. عزیزو, ان کے اندر خدا کے لیے اور مرد خدا موسیٰ کے لیے, آگے جا کر پڑھو گے, بغاوت پائی گئی. اسے پڑھنا ذرا, گنتی 14 اور اس کی 27 ورس کو پڑھنا. بجائے اس کے کہ گناہوں کی لسٹ گھٹتی, گناہوں کی لسٹ تو بڑھتی جا رہی ہے. یہاں پر لکھا ہے 14 کی 27 میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی ہے برداشت کروں. بنی اسرائیل جو میرے خلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں, میں نے وہ سب شکایتیں سنی. 28 ورس کہتی ہے سو تم ان سب سے کہہ دو کہ خداوند کہتا ہے کہ مجھے اپنے حیات کی قسم کہ جیسا تم میرے سنتے کہا ہے, میں لکھا ہے میں تم سے بھی ضرور ویسا ہی کروں گا. آپ گنتی کی کتاب اس کا 13واں چیپٹر اپنے وقت میں پڑھنا, اور پھر 14واں چیپٹر بھی اپنے وقت میں پڑھنا. اگر ان چیپٹرز کی میں دہرائی کرتا تو یہ سرمن کافی لمبا ہو جاتا, لیکن یہ آپ کا ہوم ورک ہے, آپ ان چیپٹرز کو ضرور پڑھنا. کیونکہ لکھا ہے 13ویں میں جاسوس بھیجے گئے, آ کر ان لوگوں نے غلط رپورٹ سنائی. اتنے بڑے بڑے قداور ہیں وہ لوگ, راکشس ٹائپ ہیں وہ لوگ, اور ان کا رہن سہن ایسا ہے, ہم تو ان کی نگاہ میں ٹڈے ہیں, ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. لیکن یشوع اور کالب نے کہا خدا سے بغاوت مت کرو, ان معجزات کا یقین کرو جو ماضی میں وہ کرتا رہا, وہ تو ہماری خوراک ہیں. لیکن 14ویں چیپٹر میں لکھا ہے ان لوگوں نے پتھر اٹھا کر یشوع اور کالب کو مارنا چاہا, اور سارا دن اسرائیلی روتے رہے یہ سوچ کر کہ ہماری عورتیں لوٹ لی جائیں گی, ہمارے بچے لوٹ لیے جائیں گے, اور خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا. خدا نے کہا جو تم نے کہا وہ سب میں نے سنا ہے, اب ایسا ہی ہوگا, اب ایسا ہی ہوگا, کیونکہ تم اپنے لفظوں کے کر کے پھنسو گے, تم اپنے شبدوں میں پھنسو گے, اب یہی کچھ تمہارے لیے ہوگا. تبھی تو خدا نے کہا یہ خبیث گروہ میری شکایت ہی کرتا رہتا ہے, اور خدا نے کہا میں نے تمہاری شکایتوں کو سن لیا ہے, اب میرے حیات کی قسم ہے تم اپنے آرام میں نہیں جاؤ گے, تم میراث نہیں پاؤ گے, تم وعدہ کے ملک میں, ملک موعود میں نہیں جاؤ گے, تم خدا کے آرام میں داخل نہیں ہو پاؤ گے. 29 ورس کو پڑھنا اور پھر 30 کو بھی پڑھنا. یہاں پر 14 کی 29 اور 30 میں لکھا ہے تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی, اور تمہاری ساری تعداد یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر اوپر کی عمر کے سب جتنے گنے گئے, لکھا ہے مجھ پر شکایت کرتے رہے. 30 آیت کہتی کہ ان میں سے کوئی اس میراث میں جس کی بابت میں نے اب قسم ابراہیم سے کھائی گئی تھی کہ میں اپنے حیات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیری نسل کو اپنے آرام میں داخل کروں گا. خداوند نے کہا میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا, جانے نہ پائے گا سوائے یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹا یشوع کے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں صرف 2 لوگوں کے اوپر وہ پلان رہے گا, بقایا سارے بیابان میں مر جائیں گے, بقایا سب کی لاشیں بیابان میں گل سڑ جائیں گی. اب یہ ان کے کاموں کے کر کے تھا, یہ ریزلٹ بائبل کہتی ہے ان کی کمیٹی جو گناہ کی ڈالی تھی اس کا ریزلٹ تھا وہ اس شکل میں نکلنی تھی. اس لیے عزیزو خداوند خدا کو اس قوم کے لیے اپنا ارادہ بدل لینا پڑا, اور ابراہیم سے کی گئی قسمیں اور ان بزرگوں سے کیے گئے عہد خداوند نے کہا وہ میں اس قوم کے اندر پورے نہیں کروں گا, اور 20 سال سے جتنے اوپر کے ہیں وہ سارے گل سڑ جائیں گے, وہ مر جائیں گے, نئی نسل کے جائیں گے, اور پرانی نسل میں سے صرف 2 لوگ جائیں گے. بولیے وہ کون کون؟ یشوع اور کالب, یشوع اور کالب. عزیزو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہی لوگ باغی اور نافرمان رہے؟ آج کے زمانے کے لوگ باغی, نافرمان, خدا کی شکایت کرنے والے اور بے ایمانی میں چلنے والے نہیں ہیں.
आज भी हैं। ये सब कुछ जो बाइबल में लिखा है, हिस्ट्री को जिंदा रखने के लिए नहीं लिखा गया, या एक खाता पूरी करने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि रूल कुदस ने इन वाकयात को इसलिए लिखवाया कि अगर आज का चर्च भी नाफरमानी में रहेगा, आज का चर्च भी बेईमानी में रहेगा और खुदा की और खुदा के मंसूबों की शिकायत करेगा और तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस रहेगा, जो रिजल्ट उनका निकला वो रिजल्ट इनका भी निकलेगा। ऐसा है कि नहीं, बोलिए। इसलिए मैंने कहा ये एक कड़वा सच है जिसको बाइबल हर एक मसीही से बयान करती है। उनकी मंजिल, बोलिए, कौन था? मुल्क केनान। हमारी मंजिल क्या है? नया यरूशलेम। बोलिए आमीन। ये याद रखो, शैडो के जमाने के अंदर, क्योंकि पुराना ऐदनामा जो 39 किताबों पर मुश्तमिल है उसे शैडो कहा जाता है। तो शैडो के अंदर रेस्ट ऑफ गॉड जो है वो मुल्क केनान है, लेकिन रियलिटी के अंदर जब हम नए ऐदनामे की बात करते हैं जो 27 किताबों पर मुश्तमिल है, तो रियलिटी के अंदर गॉड का जो रेस्ट है, याद रखो, वो नया यरूशलेम है। इसलिए पुराने ऐदनामा का चर्च अपने आराम को गवा बैठा, इसलिए कि नाफरमानी में रहे, इसलिए कि बेईमानी में रहे, इसलिए कि तरह तरह के पापों में मुलव्वस रहे और गवा बैठा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सब कुछ लिखा जाना इत्तफाक नहीं है, बल्कि नए चर्च को ये बताना है कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम भी किसी सफर पर हो, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, आंखें खोल कर चलो, नहीं तो ये सफर और ये चीजें तुम्हारे हर उस बरकत को तुमसे रोक लेंगी। इसलिए अजीजों, वादा की तरफ या वादा के मुल्क की तरफ सफर करना बड़ी बात नहीं है, उस सफर को खत्म करना बड़ी बात है। आमीन। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, बाइबल कहती है यहां पर 6 लाख मर्द थे जब वो निकले थे उससे, मिस्र से। 6 लाख मर्द, औरतें बच्चे छोड़कर। और जब गूगल औरतों और बच्चों का भी हिसाब बताती है तो बताती है 20 लाख लोग थे, बच्चों औरतों समेत, जब वो मिस्र से आए। और अजीजों, ये सोचो कि इतनी बड़ी तादाद ने मुल्क केनान की तरफ अपना सफर शुरू किया। शुरू कर देना बड़ी बात नहीं है, मुकम्मल करना बड़ी बात है। लाखों लोगों ने सफर शुरू किया, खत्म कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने खत्म किया? 2 लोगों ने। कितने लोगों ने? यशवा और कालेब ने। यशवा और कालेब ने, 2 लोगों ने सफर शुरू किया। इसलिए कई बार मैं आपको कह चुका हूं कि कामयाब मसीही जिंदगी की बुनियाद इस बात पर नहीं है कि आपकी शुरुआत बड़ी बढ़िया है। कामयाब मसीही जिंदगी की बुनियाद इस पर है कि आपका एंड बड़े कमाल का है। और एंड किया यशवा और कालेब ने। और बाइबल कहती है, खुदावन ने कहा ये सारे बियाबान में गल सड़ जाएंगे। आप ये सोचो वो क्यों गल सड़ जाएंगे? इसलिए कि उन लोगों ने खुदा की कुदरत पर यकीन नहीं किया और बेईमानी से निकल ही नहीं पाए, नाफरमानी नहीं छोड़ी, तरह तरह के पाप नहीं छोड़े। यशवा और कालिब कोई आसमान से नहीं उतरे थे, उन्हीं के परिवारों में से वो लोग थे, उन्हीं के जैसे थे। लेकिन ये सोचो, नाफरमान और बेईमान और तरह तरह के कामों में, पापों में मुलव्वस लोगों के बीच में भी 2 ऐसे लोग पाए गए जिनकी स्टोरी आखिर में बिल्कुल अलग ठहरी। क्योंकि बाइबल कहती है उनके स्टेप्स कुछ और थे, उनके फैसले कुछ और थे। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए अजीजों, खुदावन खुदा इस्राएलियों के लिए यह मंसूबा रखता था कि वो मेरे आराम में दाखिल हो जाएं। आप पढ़ोगे कि उन लोगों ने मिस्र में 430 साल तक मुशक्कत की थी, 430 साल तक गुलामी में दुख उठाया था। खुदा कह रहा है सब्र करो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, सब्र करो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और वो आराम उनके लिए मुल्क केनान था। लेकिन ये सोचो कि वो स्ट्रगल, वो मुशक्कत, वो दुख, उनका रिजल्ट वो नहीं निकाल पाया जो खुदा उनके लिए प्लान कर चुका था। और आप बाइबल में ये पढ़ोगे वो सब के सब, हम ये पढ़ते कि बियाबान में मर गए। अजीजों, मैंने कहा उनकी मंजिल कुछ और थी, लेकिन उनकी मंजिल क्या ठहरी? बियाबान की कब्रें, बियाबान की कब्रें। आमीन। उनकी मंजिल क्या ठहरी?
बियाबान की कब्रें। आपको पता है जब वो 400 साल का 40 साल का सफर पूरा करके मुल्क के किनान में यशवा और कालिब और नई नस्ल के लोग गए, तो पीछे क्या छोड़ा उन्होंने? क्या छोड़ा उन्होंने? बियाबान में 6 लाख मर्दों की कब्रें। 6 लाख मर्दों की कब्रें बियाबान के अंदर। एक बड़ा कब्रिस्तान वहां पर इजराइलियों का। ये खुदा नहीं चाहता था। खुदा चाहता था ये सारे के सारे मेरे आराम में दाखिल हो जाएं। लेकिन अजीजों, अगर मैं बता रहा हूं, हमने अपनी हालत को ना बदला, हमने अपनी सोचों को ना बदला, अपने किरदार, अपनी रविश को ना बदला, ये चीजें लिखी जानी इत्तफाक नहीं है, बल्कि चर्च को समझाना है कि ये ना हो कि तुम्हारा भी रिजल्ट यही निकले। अजीजों, यहां पर इजराइली तारीख के इस हिस्से में इस सदी के सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया गया है। इस तारीखी हिस्से में मैं बता रहा हूं कि इस सदी के सबसे बड़े सवाल का जवाब यह दिया गया। अब सवाल यह किया जाता है, क्या अक्सरियत हमेशा दुरुस्त नहीं होती? लोग क्या सोचते हैं? ओ वो ज्यादा लोग हैं, वो कहां झूठे हो सकते हैं? तादाद ज्यादा है, फॉलोअर्स ज्यादा हैं, वहां गैदरिंग ज्यादा है, वो कैसे झूठे हो सकते हैं? वो रियलिटी है, वो सदाकत पर हैं। यहां तो एक दो लोग हैं। मैं बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। गैदरिंग एक, बोलिए, बहुत बड़ा धोखा है। अजीजों, यहां हम ये सीखते हैं, बाइबल बताती है कि अक्सरियत जो थी, आप सोचो 5 लाख से ज्यादा लोग, लिखा है, झूठ में थे, और सिर्फ यशवा और कालिब सदाकत पर थे। 5 लाख से ज्यादा लोग, मैंने कहा, गलती पर थे, धोखे पर थे। वो, मैं बता रहा हूं, बहक चुके थे और खुदा की आवाज को कभी संजीदगी से लिया ही नहीं है। और तभी बाइबल कहती वो सारे के सारे बियाबान में मार दिए गए, लेकिन सिर्फ नई नस्ल के लोग खुदा के आराम में गए। अब सुनिए, उनकी बेईमानी 4 तरह से खुदा को गुस्सा दिलाती थी। इन अल्फाज को जरूर सुनिएगा। मैंने कहा, इजराइलियों की बेईमानी जो थी वो 4 तरह से खुदा को गुस्सा दिलाती थी। नंबर 1, उनकी बेईमानी की असल बुनियाद इस बात पर थी कि खुदा की सच्चाई पर हमला किया जाए। बोलिए, किस बात पर बुनियाद थी? कि खुदा की सच्चाई पर हमला किया जाए और उसे झूठा साबित किया जाए। ये उनकी बेईमानी की बुनियाद थी, क्योंकि 13वें चैप्टर में उन्होंने कह दिया था कि खुदा जनाब हमारी औरतों को हमसे लूटना चाहता है, हमारे बच्चों को हमसे लूटना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं था। और मैं बता रहा हूं, ये उनकी बेईमानी की बुनियाद थी, और खुदा की सच्चाई पर हमला करना था और खुदा को झूठा साबित करना था। नंबर 2, उनकी बेईमानी की बुनियाद इस बात पर थी कि खुदा की कुव्वत और उसकी ताकत के ऊपर हमला किया जाए और उसे झूठा साबित किया जाए कि वो हमें बचा नहीं सकता। हम अगर वहां पर हमला करें तो वो तो बड़े कदावर और बड़े राक्षस टाइप लोग हैं, खुदा ने किधर हमें बचाना है, वो तो जस्ट हमें मरवाने के लिए लेके जा रहा है। इसलिए उन लोगों ने उनकी बेईमानी की जो बेयकीनी की बुनियाद थी, वो खुदा की ताकत, उसके सामर्थ्य और मैंने कहा उसकी कुव्वत के ऊपर हमला करना था। नंबर 3 सुनिए, उनकी बेईमानी की असल बुनियाद खुदा के ला तब्दील होने पर हमला करना था। वो ये बताना चाहते थे कि खुदा बदल गया है, जबकि बाइबल कहती वो ला तब्दील है, वो नहीं बदलता। लेकिन उनकी बेईमानी की बुनियाद इस बात पर थी कि वो ला तब्दील नहीं है, वो बदलने वाला है। माजी में जो जो उसने काम किए थे, अब क्यों नहीं कर रहा? अब हमें क्यों नहीं बचा रहा? अब वो हमारे लिए वो ऐसे बड़े काम क्यों नहीं कर रहा? इसलिए मैंने कहा, उन लोगों ने ये साबित करना चाहा कि खुदा ला तब्दील नहीं है, वो बदलता रहता है। और उन्होंने कहा वो अजायब, और उन्होंने कहा वो करामात जिनका जिक्र हमने सुना या जिनको देखा, वो हमारे दरमियान अब क्यों नहीं करता? इसलिए उन्होंने खुदा की, मैंने कहा, ला तब्दील उसकी सिफ्त के ऊपर हमला किया। नंबर 4 कहते हैं, उनकी बेईमानी की असल बुनियाद खुदा की पिदराना जो वफादारी है उस पे ऊपर हमला करना था। पिदराना वफादारी मतलब बाप के जैसे
جو वफादारी है, जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, उसके ऊपर हमला करना था कि गोया खुदा उनके लिए ऐसी उम्मीद की हौसला अफजाई कर रहा है जिसे वो कभी उनके लिए पूरा नहीं करेगा। आप सोचो, उनकी बेईमानी की बुनियाद इन 4 बातों पर थी कि ये कायलियत जो यशवा और कालिब हमारे अंदर पैदा कर रहे हैं ना, ये बेकार है, क्योंकि खुदा वो देने ही नहीं वाला, वो बचा नहीं सकता, वो ला तब्दील नहीं है, वो बदल गया है। इसलिए 4 तरह से उन लोगों ने खुदा की जात और उसकी कुव्वत और उसकी सच्चाई के ऊपर अटैक किया। लेकिन इसके बरक्स अगर 2 लोगों को देखो, उनकी स्टडी बताती है, इसके बरक्स बाइबल उनके बारे में बताती, यशवा और कालिब खुदा की इज्जत उन्होंने की और उन्होंने खुदा के अल्फाज को दुरुस्त माना कि खुदा कर सकता है। आप पढ़ोगे वहां पर उन्होंने कहा वो तो हमारी खुराक है, हम उन्हें खा जाएंगे, फकत तुम खुदा पर यकीन रखो। उन लोगों ने खुदा की इज्जत की और उन अल्फाज को दुरुस्त माना। और फिर इसके बाद कहा जाता है उन्होंने उसकी लामहदूद कुदरत पर भी यकीन किया कि अगर वो बैरे कुलजुम को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है तो जनाब ये बड़े बड़े जो राक्षस तुम देखते हो ये भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। अजीजों, इसके बाद उन्होंने खुदा की तबीयत को, उसके मिजाज को यकसा माना। उन्होंने ये कहा वो ला तब्दील है, वो यकसा है, वो नहीं बदलता। और इसके बाद उन्होंने हमें स्टडी से ये पता चलता है कि उन लोगों ने समझाया कि वो लोगों को इस चीज के लिए उकसाएं कि वो आएं और जनाब उनके खिलाफ खड़े हों लड़ाई के लिए। लेकिन बाइबल कहती है इजराइली तो रोते ही रहे और बेयकीनी की उन लोगों ने। आप उनकी नाफरमानी और बेईमानी का नतीजा क्या देखते हो बाइबल में? क्या रिजल्ट निकला उनका? लाशें बियाबान में पड़ गईं, वो गल सड़ गए बियाबान में। अजीजों, एक चीज याद रखो, हम अपने फैसलों से नताइज नहीं बदल सकते, हम अपने फैसलों से अपने काम बदल सकते हैं। हमारे कामों के अंदर इतनी ताकत है कि वो हमारे नताइज बदल सकते हैं। खुदा ने कई बार इजराइलियों को मौका दिया कि वो फैसले करें ताकि अपने काम बदलें, नाफरमानी छोड़कर फर्माबरदारी में आए, बेईमानी को छोड़कर दीनदारी में, ईमानदारी में आए और गुनाहों को छोड़कर पाकीज़गी में आए। कई बार खुदा ने कलाम रिलीज किया, कई बार मैन ऑफ गॉड ने उनको तालीम दी, कई बार खुदा मिरेकल्स करके उनको बता रहे, समझा रहे, लेकिन उन लोगों ने अपनी हालत को नहीं बदला। इसलिए हम यहां ये पढ़ते हैं उनके गुनाह क्या थे। नंबर 1 बगावत करना खुदा और मूसा के खिलाफ, नंबर 2 नाफरमानी में चलना, नंबर 3 बाइबल क्या कहती है बेईमानी में रहना, और नंबर 4 तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस उनका पाया जाना। नहीं बदला उन लोगों ने अपनी आदतों को और इन चीजों को नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने कहा उस मिरास को जनाब उन लोगों ने गवा दिया। उस मिरास को उन लोगों ने बोलिए गवा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मिरास नहीं पाने वाले कि पाने वाले हो? हमारी भी तो एक मिरास है जो वेट कर रही है। बाइबल मुकद्दस उसकी कई सफात बयान करती है उस मिरास की। वो कायम रहने वाली है, वो पायदार है, वो लाजवाल है। बाइबल कहती है वो बेदाग है। कई ऐसी चीजें उस मिरास के अंदर बताई गई हैं। आइए पढ़िए जरा एक वर्स को देखना, अब्रानियों 4:1 को देखो जरा। अब्रानियों 4:1 को देखिए जरा। अजीजों, आज भी याद रखो ये 4 तरह के गुनाह मुतहर्रक हैं हर एक क्रिश्चियन को खुदा के राम में रोकने से कि वो ना वहां पर दाखिल हो पाए। आज भी ये 4 तरह के गुनाह एक्टिव हैं। अब्रानियों 4:1 में लिखा है, बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो तुम्हें डरना चाहिए। तो तुम्हें बोलिए डरना चाहिए। अब ये नए चर्च की बात है। नए चर्च को कहा गया कि उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है, क्योंकि ये लोग जा ही नहीं ना पाए तो वादा अधूरा रहा, वादा नामुकम्मल रहा। बाइबल ये कह रही है बस उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो तुम्हें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। ये नए चर्च को खुदा कह रहा है, नए चर्च की बात कर रहा है। मुझे ये बताइए, पुराने ऐदनामा में हम खुदा के आराम किसकी शक्ल में देखते हैं? बोलिए, शैडो में खुदा का आराम किसकी शक्ल में है?
मुल्क केनान की शक्ल में, तो रहे हुए कितने मालूम हुए? लाखों की तादाद से। बाइबल कहती है अब रूल कुदस नए चर्च को कह रहे, कहा वो वादा अब भी बाकी है, वो वादा अब भी बाकी है, वो पूरा नहीं हुआ। खुदा चर्च को कह रहे हैं कि उसके आराम में दाखिल होने का वादा अब भी बाकी है, और चर्च को कहा जा रहा है ऐसा ना हो कि कोई तुम में से रहा हुआ मालूम हो। एक मसीही कैसे रहा हुआ मालूम होगा? अगर वो नाफरमान पाया गया। एक मसीही कैसे रहा हुआ मालूम होगा? अगर वो बेईमान पाया गया। एक क्रिश्चियन कैसे रहा हुआ मालूम होगा? अगर वो बागी पाया गया या तरह तरह के गुनाहों में पाया गया। अजीजों, याद रखो, वजूहात आज भी वही हैं। मैंने कहा अलामतें आज भी वही हैं, और नाराजगी खुदा की आज भी उसी तरह काम कर रही है। अगर ये चीजें चर्च में काम करेंगी तो चर्च को बाइबल कहती है कि डरो, तुम्हें डरना चाहिए, इसलिए कि इज़राइल अगर रह गए तो खुदा ने तुम्हें मौका दिया है। खुदा तुम्हें आगे लेके जाना चाहता है, वो तुम्हें माहौल दे रहा है, वो तुम्हें कई तरह से सहूलतें, आसानियां बख्श रहा है, ताकि जनाब अपने फैसलों को सीधा करो और आगे निकल जाओ। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज एक इंसान को नहीं पता कि क्या गलत है और क्या बुरा है? क्या नहीं पता? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपके घर में कुत्ता है ना जनाब, उसे रोटी डालो, कुत्ता क्या करेगा? हाथ उठाएगा, दुम हिलाएगा और आपको स्माइल पास करके शुक्रिया करेगा कि आपने रोटी मुझे दी। ऐसा करेगा? लेकिन ये सोचो, वही कुत्ता अगर कहीं से रोटी चुराएगा ना तो 4 गलियां दूर जाके खाएगा। ऐसा क्यों है? वहां बैठ के क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि कुत्ते को भी पता है ये रोटी चोरी की है, और वो रोटी हक हलाल की है जो मालिक से मिल रही है। कुत्ते को पता है कौन सी चीज गलत है और कौन सी सही है। एक आदमी को भी पता है, अगर जानवर को पता है कि ये चीज चोरी की है और मुझे 4 गलियां दूर जाकर खाना है, तो इसलिए कि कोई मारे नहीं मुझे क्योंकि ये मैंने चुराया है, एक इंसान को भी पता है। इसलिए अजीजों, आपकी कमेटी कल गलत ना निकले तो आज खुदा माहौल देता है, मौका देता है, आपके हाथ में है। मैंने कहा आप अपने फैसलों से अपने कामों को बदल सकते हो। आपके काम आपके नताइज बदल देंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए मूसवी शरीयत में चलने वाले इस्राएली क्या पड़ा? बागी ठहरे, बेईमान ठहरे। बाइबल कहती तरह तरह के गुनाहों में पाए गए, और क्या हुआ? आराम के वादे को गवा दिया। आराम के वादे को गवा दिया। यीशु मसीह के फजल में चलने वाले मसीही, बाइबल कहती है उस आराम में दाखिल होने का उनके लिए मौका बाकी है। उस आराम में दाखिल होने के लिए उनके लिए वादा भी बाकी है। इसलिए चर्च को चाहिए कि अपने कामों को मुकम्मल करे, अपने कामों को सीधा करे। ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे ये बताइए, जिम्मेदारी हमारी होती है कि जिम्मेदारी मेरी होती है? जिम्मेदारी हमारी है कि जिम्मेदारी मेरी है? ऊंची आवाज में सब बोलो, जिम्मेदारी मेरी है। जिम्मेदारी, क्योंकि जब आप बोलते हो ये बाइक किसकी है, तो ये नहीं बोलते हमारी है। बाइक किसकी है? मेरी है। तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि अगर हमारी बोला जाएगा तो फिर एक आदमी दूसरे पर काम डाल देता है। मैं ना कीता तो उन्हें तो कर ही देता होने, ये नहीं पता उन्हें भी नहीं कीता। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, हर शख्स की जिम्मेदारी अपनी है, और आपकी जिम्मेदारी में खुदा मुदाखलत नहीं करेगा कि जनाब आपकी जगह एंजल भेजे कि ये नहीं दुआ कर रहा तो चल एंजल तू कर दे इसके हिस्से की दुआ। ये बपतिस्मा नहीं ले रहा तो चलो कोई और फरिश्ता, जो आपको करना है वो बोलिए आप ही को करना है। इसलिए हम यहां ये पढ़ रहे हैं, ये वादा बाकी है, ये मौका भी बाकी है खुदा के आराम में दाखिल होने का। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। यहां तक समझ आई है तो बोलो हाँ, ऊंची आवाज में बोलो हाँ। अजीजों, माजी में खुदा ने आराम में दाखिल होने का वादा मुकम्मल नहीं किया, उसे बाकी रखा है। अब सुनना, आराम को बाइबल के अंदर ये 5 शक्लों में बयान किया गया है। जब हम लफ्ज आराम को, रेस्ट को पढ़ते गए तो पूरी बाइबल में आराम को मैंने कहा इन 5 अल्फाज में पेश किया गया है, और यहां पर उनका खुलासा इन सूरतों में किया गया है।
سب سے پہلا آرام ہے، بولیے اطمینان کا آرام. اونچی آواز میں بولیے اطمینان کا آرام. اب یہاں پر اس کے لیے حوالہ لکھیے آپ، پیدائش 2 باب کی 2 آیت. پیدائش 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا. اب یہاں پر ان سب دنوں کے اندر آپ پڑھو گے، سب کچھ کر کے خدا نے آرام کیا تھا. ایسا ہے، بائبل کہتی ہے اب جب اس کو کہا جاتا ہے اطمینان کا آرام، تو اس سے مراد کیا ہے؟ عزیزو، یہ آرام یاد رکھنا، محنت اور مشقت کے بعد جو آرام ہم کرتے ہیں، یہ وہ آرام نہیں تھا. بولیے یہ وہ آرام نہیں تھا، کیونکہ یہ اطمینان کا آرام تھا، یہ سیٹسفیکشن کا آرام تھا کہ جو کچھ میں نے بنایا ہے سب کا مال بنایا ہے، کیونکہ ہر چیز کا خدا مشاہدہ کرتا رہا اور اس چیز سے لطف اٹھایا کہ میں نے سب اچھا بنایا ہے. اس لیے جب ہم بائبل میں لفظ آرام کا ترجمہ یا اس کا خلاصہ یا اس کی صورتیں پڑھتے گئے تو پہلی ہے اطمینان کا آرام. تو بائبل یہ کہتی کہ جینیسس کے اندر جب خدا نے 7ویں دن آرام کیا تو اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ محنت اور مشقت کرنے کے بعد اس نے آرام کیا، بلکہ یہ اطمینان کا آرام تھا. اس نے ہر چیز کا مشاہدہ کر کے خوش ہوا، اطمینان لیا اور تب اس نے آرام کیا. لیکن سوال یہ ہے عزیزوں کہ خدا کے اطمینان کو گناہ نے ڈسٹرب کر دیا. خدا کے آرام کو گناہ نے بولیے ڈسٹرب کر دیا، کہ خدا جب دنیا کے اندر گناہ داخل ہوا تبھی خدا کے آرام میں مداخلت بھی پیدا ہو گئی. عزیزو، آپ سوچو گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پڑھو گے ایک وہ آپ کو یاد ہے سرمن کمیونیکیشن، ہم نے وہاں پر یہ سیکھا تھا کہ اسٹرگل نہیں تھی دنیا کے اندر، سب سے پہلے ریسٹ تھا، سب سے پہلے ریسٹ تھا، ہر طرف اطمینان، سکون اور تسلی تھی. لیکن جس دن پاپ ہوا تبھی اسٹرگل آ گئی. لوگ بولتے ہیں ایسا کہ واٹ از اے لائف، تو جواب کیا آئے گا؟ لائف از اے اسٹرگل. لوگ بولتے ہیں سنگھرش ہے جیون، زندگی جد و جہد ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جیون خدا نے بنایا تھا اس کی بنیاد جد و جہد پر نہیں تھی، اس کی بنیاد اطمینان کے اوپر تھی، تسلی کے اوپر تھی. اور یہاں یہ پڑھا، ہم نے پڑھا کہ جب گناہ دنیا میں آیا خدا کے آرام میں مداخلت ہو گئی. ایک ورس پڑھنا یوحنا 5:17 میں، یوحنا 5:17 میں لکھا ہے، لیکن یسوع نے ان سے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے. میرا باپ بولیے اب تک کام کرتا ہے. تو بولیے خدا کے آرام میں مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم یہاں یہ پڑھ رہے ہیں عزیزو کہ گناہ نے اس وقت وجود پا کر خدا کے آرام میں مداخلت کر دی، اور جناب مسیح نے کہا یوحنا 5:17 میں، لیکن یسوع نے ان سے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. میں بھی، بولیے آرام کر رہے ہیں باپ بیٹا کہ کام کر رہے ہیں؟ دونوں کام کر رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں. جبکہ جینیسس یہ بتاتی خدا نے سب کر کے آرام کیا تھا، لیکن ایک چیز نے وجود پا کر اس کے آرام میں مداخلت کر دی. آج باپ کئیوں تک، میں نے کہا کئی خادموں کی رسائی کراتا ہے، کئی طرح سے خوشخبری لے کے جاتا ہے. اب باپ اور بیٹا سوچو کام کر رہے ہیں تو صرف آپ کی سلویشن کے لیے، ہمارے بچاؤ کے لیے، ہمیں آرام میں لے کے جانے کے لیے، اس میں کہہ رہا ہوں پرماننٹ پلیس کے لیے جو گلوری سے بھرا ہے، جو برکتوں سے بھرا ہے. باپ اور بیٹا دونوں مل کے کام کر رکھے ہیں. بولیے آمین، ہاللیلویا. نمبر 2 ہم نے پڑھا ملک کنعان کا آرام. اسے دیکھیں گے ذرا، اگر آپ گنتی 13واں باب اور پھر اس کا 14واں باب اس کو اپنے وقت میں پڑھنا. عزیزو، ملک کنعان کو بنی اسرائیل کے لیے آرام کا ملک ہونا تھا، لیکن ہو نہیں پایا نا، ہو نہیں پایا. بائبل میں یہ دوسرا ان کا آرام تھا. آپ پڑھو گے اکثریت جو تھی نا وہ ساری بیابان میں مر گئی تھی، گناہ کی حالت میں مر گئے تھے. وہ سارے نافرمانی کے، بے ایمانی کے، طرح طرح کے کاموں میں جو برے تھے اس میں وہ ملوث پائے گئے، وہ سارے مر گئے. اور جو اس ملک میں داخل ہوئے تھے انہیں بھی مکمل آرام نہیں مل پایا.
यशवा और कालिब की क़यादत में जितने लोग उस मुल्क में आए थे ना, उस आराम से जो खुदा प्लान कर चुका था, वो मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद नहीं हुए। पुराने एदनामा में मुल्क केनान, याद रखो, खुदा के अबदी आराम की तस्वीर है। मुल्क केनान, मैंने क्या बोला? खुदा के अबदी आराम की क्या है? तस्वीर है। वो उसका, मैं बता रहा हूं, शैडो है, वो उसका अक्स है, मैं बता रहा हूं उसकी तस्वीर, उसकी तशबीह है। इसलिए यहां ये बताया जा रहा है कि बतेरे जो मुल्क केनान के आराम में दाखिल ना हो पाए, वो मौजूदा जमाने के नाफरमान, बेईमान, बागी और तरह तरह के गुनाह में मुलव्वस लोगों की वो तस्वीर है। क्योंकि ये भी मर जाएंगे पर जाएंगे नहीं। जाएंगे कौन? यशवा और कालिब के जैसे लोग हैं। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने कहा मुल्क केनान, बाइबल कहती है दूध और शहद, वो खुशहाली का निशान था। मैंने कहा मिस्र में जो मुशक्कत उठाई थी 430 साल में उन लोगों ने, खुदावन ने कहा इसे मैं तुम्हारे आराम में बदल दूंगा। अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें हर तरह से रेस्ट देगा, लेकिन हो नहीं पाया, सारे मर गए। इसके बाद तीसरा है जमीर का आराम। इसे पढ़िए जरा, एक वर्ष को मेरे साथ देखना, मत्ती की अंजील 11वां बाब और उसकी 28 वर्ष को देखिए। 11वां बाब और उसकी 28 वर्ष को। अजीजो, जमीर का आराम, इसे नजात का आराम भी कहा जाता है। अगर ब्रैकेट में आप लिखोगे तो उसे लिख लो, जमीर के आराम को क्या बोला मैंने? इसे नजात का आराम भी कहा जाता है। इस जमाने के तमाम ईमानदारों को जमीर का आराम हासिल होता है। और पता है कैसे आराम हासिल होता है? क्योंकि वो जानते गए कि खुदावन यीशु मसीह उनके गुनाहों का कफारा हो चुका है, उनकी खलासी, उनके छुटकारे का मुकम्मल बंदोबस्त हो चुका है। और अजीजो, इसलिए वो अपने से फिदिया के काम को जानकर समझते गए कि जनाब मेरे जमीर से इस आवाज को सुन के कि मुझे आराम हासिल है, क्योंकि मसीह ने मेरे लिए बंदोबस्त कर दिया है। इस वर्ष में लिखा है 11 की 28 में, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सब मेरे पास आओ, बोलो मैं तुम्हें। ये निजात का आराम है, ये जमीर का आराम है। ऐ बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, खुदावन ने कहा ऐ मेहनत उठाने वाले लोगों, सब मेरे पास आओ। याद रखो, ना तो मिशन की बात है, ना फिरके की बात है, ना धर्म जात की बात है। जस्ट ये फील होना चाहिए कि मैं मसीह से दूर हूं और फिक्रों में और बुरे कामों के अंदर मैं मुलव्वस हूं। और मसीह की आवाज अगर हम सुनते हैं तो ये जान लें कि वो हमें आराम देने की पेशकश करता है। और मैंने कहा ये एक नजात की नजात का आराम है और दूसरा ये जमीर का आराम है। क्योंकि याद रखो, खुदा के बाद जमीर है जहां से हम मलामत लेते हैं। कहां से लेते हैं? जमीर से। तो जमीर मुतमिन होता है, खुश होता है तब जब हम तौबा करते हैं कि मेरी मलामत इसको सही जगह पर ले गई। आमीन। मेरा तंबी करना, ओ शुक्र है कि इसको सुधार दिया उसने। मेरा इसको कायल करना, इसे उभारना, इसकी जिंदगी को उसने बदल दिया है। जमीर भी अपनी जगह पर खुश है और आराम में है। उसकी जो स्ट्रगल है ना, हमें रास्ते पर लाने के लिए वो शांत हो जाती है मसीह में आकर, तभी इसे जमीर का आराम कहा जाता है। अजीजों, मैंने कहा कि हमें आराम जो मिलता है ना, वो एक पेशकश है, वो एक ग्रेस है। वो उसके लिए हम डिजर्व नहीं करते, हम उसके लिए हक नहीं रखते, क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं जनाब, हम अगर उनको परखा जाए, उनको देखा जाए, हम इस फजल के लायक ही नहीं है। लेकिन ये खुदा की एक बख्शिश है। इसलिए जमीर का आराम हकीकतन इसे मैंने कहा नजात का आराम कहा जाता है, इसलिए कि मसीह ने कलवरी पर मकलसी के काम को पूरा करके हमारे गुनाहों का हर्जाना अदा किया। और ये जमीर बार बार हमें याद दिलाता है, बार बार याद दिलाता है, लौटा लौटा अपने पापों से। और जब हम होश में आ जाते हैं, वो भी अपनी जगह पर आराम में है कि मैं इसे सही जगह पर ले आया। नंबर 4 है खिदमत का आराम। इसे पढ़िए जरा,
यहां पर मत्ती 11:29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। सब बोलो आमीन। ये क्या है बोलिए? ये खिदमत का आराम है। वो अपने जुए को हमारी ऊपर लाद देता है, और ये जुआ याद रखो भारी नहीं है, हम कभी भी इसे उतार सकते हैं, लेकिन अगर इसे कायम रखेंगे अपने ऊपर, आराम हमारा हिस्सा है। अजीजों, यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि जुए से मुराद उसकी मर्जी के ताबे अपने आप को कर देना, रूल कुदुस की हदायत के अंदर अपने आप को ले आना, और अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को, अपनी भावनाओं को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने फैसलों को टोटल उसके कंट्रोल में दे देना। ये है खिदमत का जुआ। सब बोलो हालेलुया। सो ये याद रखो, नजात की दावत नहीं है, बल्कि ये खिदमत की दावत है। और कहता है जब जब तुम खिदमत के लिए आओगे, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कई बार हमने ये देखा है कि अगर रूह हमें बेचैन कर रहा है किसी के लिए दुआ करने के लिए, इसका मतलब है उसे शिफायत की जरूरत है, लेकिन हम छोड़ देते हैं, हम किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। आप ऐसा फील करोगे कि जैसे कुछ अधूरा है आपकी लाइफ में। आप ऐसा फील करोगे कि वो सुकून आपसे छिन गया है, आपने कुछ ऐसा जो करना था वो नहीं किया है, तो आपके अंदर एक बेचैनी आएगी। इसलिए जब जब वो खिदमत वर्शिप की हो, वो खिदमत दुआ की हो, वो खिदमत प्रचार की हो, वो किसी भी दर्जे की हो, आप उसे करोगे, आप उसके वसीले से आराम पाओगे। सब बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। इसके बाद है हमारा खुदा का आराम, जो आज हम सीधा सोचो शैडो से रियलिटी में आएंगे। शैडो से बोलिए रियलिटी में, नए नामे के अंदर यही वो आराम है जिसकी पेशकश ईमानदारों को की गई है। इसे आखिरी आराम भी कहते हैं। अजीजों, मैंने कहा इसे आसमान की बादशाही भी कहते हैं, इसे नया यरूशलेम भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं बाइबल के अंदर। जब आप खुदा के आराम की बात करते हो, पुराने एदनामा में मैंने कहा वो मुल्क किनान की शक्ल में है, क्योंकि वो इज़राइल का आराम था। लेकिन नए चर्च की जब बात होती है, इनका आराम बाइबल कहती है खुदा का घर है, खुदा की बादशाही है, अबदी आराम गाह है, और इसे बाइबल खुदा का आराम कहती है। सब बोलो हालेलुया, आमीन। सो मुस्तकबिल के इस आराम को अभी के वक्त में पता है क्या कहा जाता है? बोलो सब्बत है। अभी के वक्त में इसे 5वां नाम दिया गया है। इसे 5वां, 4 मैं बता चुका हूं। अभी के वक्त में खुदा के आराम को सब्बत का नाम दिया गया है। अब्रानियों 4:9 पढ़ना। अब्रानियों 4:9। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है। सब्बत का आराम आप अगर माजी में पढ़ोगे तो ये मुल्क किनान का आराम है, लेकिन जब नए नामा में पढ़ोगे तो ये खुदा की बादशाही का आराम है। मेरी बात समझ पा रहे हो? बाइबल कहती है ये आराम बाकी है, ये खत्म नहीं हुआ। ये सफर, चूंकि पुराने नामे का सफर इज़राइल का मुल्क किनान है, तो मैंने कहा नई कलीसिया का सफर यरूशलेम है। और बाइबल कहती ये आराम खत्म नहीं हुआ, ये अब भी कायम है। और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम पाया। सब बोलो हालेलुया। आप सोचो खुदा ने अपने सारे काम करके आराम किया कि नहीं किया? ऐसा बाइबल बताती है। अब बाइबल कहती अगर कोई खुदा के आराम में दाखिल होगा तो वो भी वैसे ही होगा जिसने अपने सारे काम धरती पर पूरे कर दिए। अब वो काम क्या हैं? तोबा मुझे करनी है तो मुझे ही करनी है, मेरी जगह कोई और नहीं करेगा। अगर बपतिस्मा आपको लेना है तो वो आपको ही लेना है, वो किसी और को नहीं लेना। अगर बोना है तो वो आपको ही बोना है, किसी और को नहीं बोना। अगर रूल कुदस से भरना है तो वो आपको ही भरना है। आपकी पर्सनल जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, आप धरती पर उन्हें करते हो दयानतदारी से, पूरे तौर पर यह सोच करके एक ऐसा मुकाम मेरा इंतजार कर रहा है जहां पर जनाब मैं हमेशा के लिए आराम करूंगा। तो बाइबल कहती धरती पर जो अपने सारे काम करेगा वो ही आराम में जाएगा। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अजीजो, लफ्ज सब्बत से जब हम सबक सीखते हैं तो इसका मतलब है अबदी आराम। इसका मतलब क्या है?
अबदी आराम, और ये खुदा की बादशाही की तरफ इशारा करता है। अजीजों, जो मसीह की बेशकीमत खून से छुड़ाए गए, बचाए गए, और उसके बाद वो अपना जीवन जारी रखते गए, अजीजों बाइबल कहती है ये सब्बत उन्हीं का वेट कर रहा है। इसलिए लिखा है खुदा की कौम के लिए सब्बत का आराम बाकी है। वो खुदा की कौम आप हो, वो खुदा की कौम मैं हूं। जितनी गैर अकवाम है वो सभी की सभी बाइबल कहती है खुदा की कौम है, और उनके लिए ये आराम बाकी है। अगर आपको समझ आ रही है तो फिर ऊंची आवाज में बोलना हां, हालेलुया। इसका मतलब है कईयों को समझ आया, सबको नहीं आया। अजीजों, एक ईमानदार के लिए दीगर सारे आराम, याद रखना, इस आराम का बयाना है। ये सारे जो आराम है ना, पांचवें आराम का ये बयाना है, पांचवें आराम का ये बयाना है। आप कोई भी चीज घर में बनाते हो, पहले उसे चखते हो। आप बाइबल के अंदर ये पढ़ते हो, ये चार तरह के आराम फक्त एक टेस्ट है। असल आराम बाकी है, वो खुदा का आराम है। इसलिए से एडवांस कहते हैं, बयाना कहते हैं, इसे टेस्ट या चखना कहा जाता है। और बाइबल कहती है असल चीज बाकी है। असल चीज, मैं इसे यूं कहूंगा कि ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये क्या है? ये एक ट्रेलर है, ये चार, ये एक ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। तो ये पिक्चर है जो नई चर्च के लिए है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अब्रानियों 4:2 पढ़ना, इसे क्या लिखा है अब्रानियों 4:2 में, यहां पर लिखा है क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुनते हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। क्योंकि ईमान इसलिए नहीं बैठा ईमान के साथ कि वहां बेईमानी पहले से घर कर किए बैठी है। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं उनको भी खुशखबरी सुनाई गई। आज जिस तरह खुदा के आराम के लिए मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, सेम ऐसे ही खुदा के उस आराम के लिए जनाब मूसा ने प्रचार किया था। लेकिन वो प्रचार बाइबल कहती है उनके मन में इसलिए नहीं बैठा क्योंकि ईमान नहीं था। और ये सोचो, बाइबल ये कहती है अगर उनके साथ ये सब कुछ हुआ, 4:2 में लिखा है क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई। हमें किस चीज की खुशखबरी सुनाई जा रही है आज के दिन? द रेस्ट ऑफ गॉड। रेस्ट, बोलिए ऊंची आवाज में, द रेस्ट ऑफ। ये खुदा के आराम का प्रचार है अजीजों। मैंने कहा वो आपको उस चीज की तस्वीर अब्रानियों के खत में दिखा रहा है अजीजों, जो हमारा वेट कर रही है। और बाइबल कहती है उनके मन में इसलिए उनको ये सच्चाई या खुशखबरी फायदा नहीं दे पाई क्योंकि वहां बेईमानी थी। तो अगर आज भी याद रखना, हमारे मन में बेईमानी हुई, हमारे मन में नाफरमानी हुई या तरह तरह के गुनाह हुए, हम इस्तिफादा नहीं हासिल कर पाएंगे, इन चीजों से फायदा नहीं ले पाएंगे। इस्राएलियों को मुल्क किनान के आराम की खुशखबरी सुनाई गई, और हमें, मैंने कहा, खुदा के उस अबदी आराम की खुशखबरी सुनाई गई जो आसमान में बाप के घर में दाखिल होने से हासिल होगी। तो इसकी 6 वर्ष पढ़ना, अब्रानियों 4:6 में क्या लिखा है? पर जब ये बात बाकी है, कौन सी बात बाकी है बोलिए? खुदा के आराम की। कौन सी बात बाकी है? ऊंची आवाज में बोलो, खुदा के आराम की। क्योंकि 4 की आपने 1 में पढ़ लिया है, पर जब उसके आराम का वादा बाकी है तो यहां 4:6 में लिखा है बस जब ये बात बाकी है कि बास उस आराम में दाखिल हों, और जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हुए। जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हुए। और बाइबल ये कह रही है बस जब ये बात बाकी है, इसका मतलब है मौका और वादा अभी भी है। मौका और वादा बोलिए अभी भी है। वो आपके लिए है, वो मेरे लिए है, वो हमारे जैसे कई लोगों के लिए है। और बाइबल ये बता रही है अगर वो नाफरमानी करके, बेईमानी करके, तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस रह के इस वादे को गवा बैठे, तो तुम ऐसे मत करना। बोलिए कैसे? तुम ऐसे ना करना। अजीजों, आप बाइबल मुकद्दस में ना खुदा की तख्लीक में आप, मैंने कहा, बनीनो इंसान के लिए आराम के पेशकश को देखते हो।
क्या देखते होगे नहीं? वहां खुदा ने 7वें दिन आराम किया। खरूज की किताब में फिर जाकर एक हुक्म आ गया कि 7वें दिन आराम करना वो तुम्हारे लिए सब्बत है। अब ये सोचो क्या खुदा की मास्टर प्लानिंग है, क्योंकि 7वें दिन वो दुनिया को दाखिल करेगा, मुकद्दसों को। एक दिन 1000 का है बाइबल के मुताबिक इंसान के 1000 बरस और खुदा का एक दिन। बाइबल के मुताबिक इंसान का 1000 बरस और उसका एक दिन। दुनिया को बने कितने दिन हो गए बाइबल के मुताबिक? 6000 साल। कितने? तो खुदा के मुताबिक ये दिन कितने हुए? 6। ये दिन 6 हुए हैं और 7वें दिन आराम में दाखिल होना है। 7वें दिन, इसका मतलब है अभी 1000 साल बाकी है जब कलीसिया को खुदा अपने आराम में दाखिल करेगा। इसलिए मैंने कहा कि खुदा की तख्लीक में पढ़ लो कि उसने आराम किया। और सोचो खरूज के अंदर उसने आराम करने का वो वादा, उसने हुक्म भी दे दिया कि 6 दिन काम करना, फिर ये कहा 6 साल हल चलाना, 7वें साल जमीन को रेस्ट देना। और ये सिलसिला चलते चलते बाइबल कहती है अब जब चर्च के पास पहुंचा है तो उसने कहा 7वां वर्ष जो है वो तुम्हारे लिए क्या है? बाइबल कहती है वो तुम्हारे लिए आराम का साल होगा। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। ये 4:11 को पढ़िए, अब्रानियों 4:11 देखिए क्या लिखा है यहां पर मरकूम है, पास आओ हम आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। आराम में दाखिल होने की, कौन से आराम में दाखिल होने की? बोलिए कौन से आराम में दाखिल होने की? हम क्या देख रहे हैं? नंबर 5, खुदा के आराम में। हम मुल्के किनान में नहीं जाने वाले। इत्मीनान का आराम, जमीर का आराम और खिदमत का आराम ये जस्ट एक बयाना है। और बाइबल ये कह रही है चर्च को कि खुदा के आराम में दाखिल होने की कोशिश करो। अब इसलिए कह रही है बाइबल कोशिश करो कि तुम्हें रोका जाएगा। नाफरमानी मुतहर्रक है, बेईमानी की स्पिरिट आज भी मुतहर्रक है, वो तरह तरह के पाप कराने वाली वो आत्माएं आज भी चर्च के खिलाफ एक चैलेंज लेकर एक्टिव हैं कि इन्हें रोकना है, इन्हें वो नहीं करने देना। इसलिए बाइबल ये कहती है कि पास आओ हम आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना जाए। कितने गिरे थे? 5 लाख से ऊपर गिरे थे और सारे बियाबान में दफन हो गए थे। अगर सोचो हम दफन नहीं होना चाहते, हम मरना नहीं चाहते, आग की झील में जाना नहीं चाहते, अजीजों ये आराम आपका वेट कर रहे हैं। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए इस्राएली अपनी नाफरमानी की वजह से उस आराम में दाखिल नहीं हुए। और बाइबल कहती है नई चर्च को कि तुम कोशिश करना, तुम हिम्मत करना, तुम दलेरी करना, तुम अपने हौसले को बढ़ाते जाना, पर काम करते जाना। अजीजों काम करना बड़ी बात नहीं है, काम करते रहना बड़ी बात है। चर्च आना, दुआ करना, ये चीजें बड़ी नहीं है। इन चीजों को मुसलसल करते रहना बड़ी बात है। और उन्हीं चीजों का रिजल्ट आता है जो चीजें बार बार की जाती हैं और मुसलसल की जाती हैं। इसलिए कलाम खुदा ये कहता है कि हमने बहुतों को गिरते देखा। इजराइल की हालत में बहुतों को गिरते देखा, दफन होते देखा। बाइबल के अंदर उनको दफन होते देखा। ये खुदा का प्लान था, बोलिए, कि वो दफन हो जाए। ये खुदा का प्लान था कि वो मर जाए बियाबान में। ये उनके अपने कामों के करके था। और आज भी मैं बता रहा हूं कि इस चर्च को, दुनिया के तमाम लोगों को खुदा कई वसाइल से जनाब उनको टीच करता है वो अपने कामों को सीधा कर ले, अपनी आदतों को, अपने कर्मों को सीधा करें। अगर हम नहीं करेंगे तो मैं ये बता रहा हूं उसके पास जाने के बाद हमारे लिए कोई उज़र बाकी नहीं रहेगा। पाताल के लोगों के पास उज़र था कि नूह के जमाने में कब अंजील थी, कब शरीयत थी, तू हमें कैसे सजा देगा। उनके बीच में गया प्रचार करने के लिए। बाइबल कहती है, आप पढ़ोगे, इजराइलियों के बीच में खुद यीशु मसीह ने आकर प्रचार किया। कोई उज़र बाकी नहीं है। इसलिए अब कोई बहाना, कोई उज़र बाकी, कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं होगी। और बाइबल कहती है कि हमारी जिम्मेदारियों को हमें बार बार याद दिलाया जाता है। सो नए एदनामे के लोगों को यहां एक संजीदा नसीहत की गई है कि वो जमीन पर मसीह में और आसमान पर मसीह के साथ रहने की तैयारी करे। सब बोलो हालेलुया। जमीन पर मसीह में
اور آسمان پر مسیح کے ساتھ رہنے کی تیاری کریں. یہ بائبل انہیں سنجیدہ نصیحت کرتی ہے. آسمانی آرام میں داخل ہونے کا واحد یہی ایک راستہ ہے. آپ جتنا ٹائم دھرتی پہ ہو بس مسیح میں جیو. سب بولو ہاللیلویا، سب بولو ہاللیلویا. آئیے اپنے سر جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. عزیزو، خدا کے آرام کی پیشکش ابھی بولیے باقی ہے، وہ وعدہ بھی باقی ہے، وہ موقع بھی باقی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، جو سال خدا نے ہمیں اس دھرتی پر جینے کے لیے دیے گئے عزیزو، کاروبار کرنے کے لیے نہیں، بیوی بچوں کا دھیان کرنے کے لیے نہیں، اپنا کیریئر بنانے کے لیے، اپنا فیوچر دیکھنے کے لیے، آنے والا وقت اپنا سیٹ کرنے کے لیے. کیونکہ اگر ہم میں اپنے کام بدل لیے تو یقیناً ہمارے کام آنے والا وقت بدل دیں گے. سب بولو ہاللیلویا، اونچی آواز میں بولنا ہاللیلویا. تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا.